Okay, so hi everyone, welcome to YourPedia, and this is Shobha. And today we are going to have another live class, which I've already promised yesterday too, that we will be starting with a bit of vocabulary. And after the vocabulary, we'll be going with certain questions, the practice questions. Now, yesterday we did the vocabulary with the form of mnemonics, but today's vocabulary is going to be very interesting because we are going to do many parts from the newspapers, like what are the prominent news and what are the meanings of the news which you need to understand, which can come in your examination with the form of synonyms and tonyms. Because in your HPCL examination, vocabulary, one word, idioms, they are average of 6 marks. So a good number is there. So at least from my side, you should be very sure that, yeah, we need to prepare the vocabulary regularly, right? So, yeah, good morning, Akshita. Akshita, you can drop it out. I'll make sure the executives attach the PDFs today. So it will be done. Okay. Good morning, good evening, Parvalika, Reshmi, and so yeah, don't worry. We'll discuss the strategy also. By the end, we'll be discussing everything. That is why I'm saying you out that what are the major things and what are the major hacks to make an English understand and to be regular in touch. My basic purpose of these videos is to make you understand because you all guys are very busy in your technical stuff and all that. You don't give much time to English, but 20 marks for English, a good number, and that is only possible if you will keep connected with English every day, right? So all the rules, everything, they are very, very important. Even my marathons, I'll share the marathons with you. So in a speedy way, you're already being done with all the portions, right? So marathons are very, very important, right? Don't worry, everything is all good and it will be fine, right? Now, these are the newspapers from which I have got the news articles. Like it's the exact news articles. I've taken a screenshot for them, and now we are going to discuss some words, right? So very important words, a few vocabulary tricks I'll share. And in this way, we will be doing it on our further classes. Now, you can even tell me that you want more with the mnemonics or more want from newspaper cuttings. Whatever is comfortable for you will be chosen by me in my classes, right? So it's all about tailor-made topics. According to your comfort, I'm bringing out the topics, right? Very first is that we read the newspaper. Like suppose, spike in pollution levels may raise death rates in cities with cleaner air, says study. So this is a news which is being shared with us. Now, just you read the headline. You just have to tell me what is the meaning of the word spike. Spike in pollution. There are certain ways when you just read it out, you understand pollution kya ho raha hai? It is rising. And what is the meaning of spike? कई बार आप सोचते हो स्पाइक का मतलब होता है कोई तीखी चीज, लाइक नोकीली चीज होती है, दैट इज स्पाइक. बट आई ऑलवेज मेंशन यू इन द क्लासेस that every word has got two different meaning, right? That is qualitative meaning and denotative meaning. Denotative is dictionary level meaning. Dictionary में spike का मतलब आएगा कोई तीखी चीज, like sudden thing with the sharp object, that is spike. But in connotative, that is generic meaning, societal meaning, the word which is generic used in the slangs. Spike का मतलब होता है जब आप बोलते हो increase करना. So that is sudden increase. Yeah, Keshav did it right. So sudden increase in something, that is termed as your spike in that thing. So very first meaning clear, I think, that is spike. Let's, before we move to the next word, tell me what does the meaning of alacrity. Yesterday we did that word. What is the meaning of alacrity? All the vocabulary should be on your tips. So that is why I'm asking you. Alacrity का मतलब क्या होता है? जल्दी से बता दो. Fast. Alacrity to meet celebrity. What does it mean? कल हमने किया है. Yesterday we did it in our class, live class. Yeah, it's a zeal, it's happy, very good. So that is the way. This is your second word we did, right? Let's go with the next word now. We here have three different words, right? 26/11. किस-किसको याद है 26/11 को क्या हुआ था? 26/11. Accused Rana can be extradited, says attorney, right? Attorney बोल रही है 26/11 को क्या हुआ था? किस-किसको याद है? What happened on 26/11? What happened? What was there? What was the incident which took place on 26 November? Anyone who remembers it out? किसी को नहीं याद है? 26/11. Anup, Keshav, Akshita, Mumbai. Yeah. So the terrorist attack on Mumbai, Taj Hotel, everything, right? Taj terror attack, right? तो उस न्यूज से रिलेटेड एक टॉपिक है, कुछ वर्ड्स है, दैट इज 26/11. एक्यूज्ड का मतलब होता है, एक्यूज्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, बहुत बार पूछा गया है. एक्यूज्ड होता है द वन
who is charged of something. पहले तो याद रख लो, this is a negative word. accuse का मतलब होता है एक negative word है. accuse का मतलब होता है जिसपे charge लगा हुआ है, जिसपे blame लगा हुआ है, blame लगा हुआ है जिसपे, that is accused. तो accused का मतलब याद रख लो, that is someone who is blamed, right? So that is accused. Now 2611, accused Rana. So this is a person who is being accused. Can be extradited. Extradited का मतलब होता है डिपोर्ट किया जा सकता है उसे, right? डिपोर्ट किया जा सकता है. Now you see, there are certain treaties, there are certain things which are being signed between the countries. जैसे अब कौन सा बिजनेस टाइकून है जो न्यूयॉर्क में छिपके बैठा हुआ है, बताओ? Which business tycoon is there who is hiding himself in London? London, I'll say, yeah, particularly London. Which business tycoon from India? Who is the Kingfisher का मालिक है? Yeah, Vijay Mallya, right? So why he's not able to? Because अब जो वहाँ की you can say it out, the government है, वो अपने citizens को क्या कर रही है? Protect कर रही है. And they are not able to, they are not giving us the person back. So it is extradited. Extradited का मतलब होता है जिस तरह से deport नहीं कर रही है, right? Extradited means deporting, वापस भेजना. So that is not, because the government feels, London government feels that yeah, we need to protect our citizens, and they are not able to understand because it has done something wrong with them. तो बहुत ज्यादा अब जैसे हर कंट्री के साथ साइन अप नहीं होता है, सो सेम वे एक्स्ट्राडिटेड का मतलब क्या आ जाता है? दैट इज समवन हु इज, you can call it out as deported from that thing, right? तो क्या वो हो सकता है, वो हैंड ओवर हो सकता है. तो एक्स्ट्राडिटेड मींस हैंड ओवर करना, वापस देना, राइट? तो एक्स्ट्राडिटेड मींस हैंड ओवर. एक्स्ट्रा है भाई, वापस भेज दो इसको, राइट? देन इट सेज यूएस अटॉर्नी, एंड अटॉर्नी इट्स वेरी सिंपल वर्ड. अटॉर्नी का मतलब क्या आ जाता है? दैट इज द लीगल एग्जीक्यूटिव. वहां के एडवाइजर्स ये बोल रहे हैं कि वापस भेज देते हैं उनको. So what are the words? We can just revise it out as 2611, accused Rana. Accused is the person who is blamed. That is accused. Can be extradited. Extradited का मतलब क्या होता है? That is they can be given back. They can be handed over back. And says US attorney, says US legal advisors. Attorney, legal advisors. Extradited means handing over back. And then is your accused, someone who is blamed. Attorney, the lawyer, the legal representative. Clear with? अभी तक हमने spike word पढ़ा, that is rise. Then is your accused, blamed, extradited, handed over, attorney, legal executive. यहाँ तक किसी को problem? Then I'm going to discuss one more news with you. यहाँ तक कोई problem? Words are okay in your minds? Everyone understood the words? Extradited, extra है, उसको वापस भेज दो, right? Extradited आ गया. कोई प्रॉब्लम किसी को आज के वर्ड्स में? पहले. Then we'll move to the next news. अब everyone knows it out as that this is a new parliament. अब parliamentary sessions कहाँ पे हो रहे हैं? On this way, right? So this is a sitting arrangement and everything, right? अब एक statement है, there is a discussion which was, you can say, the speech are being delivered, right? तो वहां पे अब स्पीच हुई. पहले राहुल गांधी ने राइट किया टू लोकसभा स्पीकर. ओम बिरला इज अ स्पीकर नाउ, राइट? ही राइट्स टू ओम बिरला, द लोकसभा स्पीकर, that on the selective expunction by the chair demands a speech be restored to the records, right? अब ये बहुत ज्यादा क्या करते हो, prominent statements जो हैं वो चलती आ रही है. This thing has been the news also. जैसे राहुल गांधी ने कुछ रिलेट करने की कोशिश की. He tried to speak something on Hindu gods and all that, right? That every person, like कोई भी गणेश जी हैं, शिव जी हैं, सबका इस तरह से हाथ, it is always there, right? So what he tried to depict is कि वो रेफर करना चाहता था. और ये किसका सिंबल है? What is this? किस पार्टी का सिंबल आता है ये वाला? Anyone? Let's see your generic level कितना प्रिपेयर हो रहा है. What is the symbol of this? ये किस पार्टी का सिंबल है? राइट, कांग्रेस का सिंबल है. तो व्हाट ही ट्राई टू डिपिक्ट इज, वो कुछ ऐसा करना चाहता था, डिपिक्ट करना चाहता था. अब लोकसभा के स्पीकर के पास पावर होती है, क्योंकि यू हैव सीन जब पार्लियामेंट्री सेशंस चल रहे होते हैं तो एवरीवन इज राइटिंग समथिंग. वो कुछ स्टोर करता है कि क्या डिस्कशन हुई थी. तो स्पीकर ने बोला ये कमेंट को क्या कर दो, एक्सपंग कर दो. एक्सपंग करने का मतलब क्या होता है? एक्सपंग करने का मतलब होता है इरेज कर दो, डिलीट कर दो, निकाल दो इस चीज को. तो दैट इज एक्स कर दो. एक्स का वैसे ही मतलब क्या होता है? एक्स हो गया, बीत गया.
तो एक्सपंक करना मतलब बीत जाना, मतलब एलिमिनेट कर दो इस चीज को, राइट। तो मतलब क्या आ गया, राहुल गांधी ने राइट किया लोकल स्पीकर ओम बिरला को ऑन सिलेक्टिव एक्सपंक्शन बाय द चेयर। वो बोलता है कि मेरे कमेंट को, जैसे उसने स्पीच खत्म की, ओम बिरला ने बोला कि इस कमेंट को क्या कर दिया जाए, हटा दिया जाए। तो उसने बोला कि सभी लोग बोलते हैं तो मेरा कमेंट क्यों नहीं रखा जा रहा। तो उसके लिए क्या उसने बोला कि सिलेक्टिव एक्सपंक्शन, किसी किसी की चीजों को आप लोग क्या करते हो, इरेज आउट कर देते हो। डिमांड्स है स्पीच बी रिस्टोर्ड टू द रिकॉर्ड्स, और वो चाहता है कि उसकी स्पीच क्या हो जाए, वापस रिस्टोर्ड हो जाए। तो एक्सपेंशन का मतलब आई थिंक सबको क्लियर हो गया। अब उसी तरह से एक और कमेंट उसके बाद आया, पीएम मोदी ने राहुल को क्या बोला, बालक बुद्धि, राइट। सो पीएम मोदी ने जैसे ही राहुल की स्पीच खत्म हुई, एट द एंड ऑफ दिस, ये ओपोजिंग पार्टी का हेड था दिस राहुल गांधी, सो उसने दिया, राइट। एंड देयर इट स्टार्टेड इट आउट एज बालक बुद्धि इंसल्ट्स हिंदुइज्म, लॉर्ड्स रिमार्क एक्सपंज्ड, राइट। तो दैट इज एक्सपंज्ड का मतलब क्या आ गया कि उसने बोला कि भाई वो तो बालक बुद्धि है, तो इवन ये उसने हिंदुइज्म की इंसल्ट की है। तो दिस इज लीडर ऑफ ओपोजिंग पार्टी, मतलब उसने बोला ये वाले रिमार्क को भी क्या किया जाए, एक्सपंग किया जाए। एक्सपंग का मतलब वही आ गया, एक्स से रिलेटेड, दैट इज एलिमिनेट किया जाए, रिमूव किया जाए, इरेज किया जाए। तो आई थिंक दिस थिंग इज क्लियर। इससे हम कुछ और वर्ड्स याद करते हैं इस सीन में, एंड दिस इज द लास्ट थिंग वी आर गोइंग टू डू अबाउट द वोकैबुलरी। वेरी फर्स्ट इज माउंटिंग अ स्कैथिंग अटैक ऑन द कांग्रेस। अब ये वर्ड्स हैं, स्कैथिंग अटैक क्या आ जाता है, दैट इज यू विल कॉल इट आउट एज सिवियर अटैक। अब किसी के सामने, या पीएम मोदी ने सबसे ज्यादा बोल दिया बालक बुद्धि बोल दिया, तो ऑब्वियसली इट इज अ वेरी फियर्स फिरोशियस अटैक, बहुत, एक बोलते हैं ना, दैट इज नॉट अ स्मूथ calm attack but a fear attack which is being made on Congress a day after he and his party were targeted by leader of opposition Rahul Gandhi. Prime Minister Narendra Modi told Lok Sabha Tuesday that his government had a clear mandate for stability. Mandate का क्या होता है, that is someone who is officially approved. Authority. Mandate का मतलब क्या होता है, authority for stability continuity with the third executive team, while the Congress like a parasite. Parasite क्या होता है, जो किसी ऊपर क्या करता है, लिव करता है, राइट। तो consecutive, that is someone who lives over the another, that is organism that lives on the other for the support, that is parasite, feeding on its allies for survival, right। allies क्या होते हैं अब आपके, जो एक merging party होती है। अब आपको सबको पता है, that is नरेंद्र मोदी was not in like the maximum portion, उसको क्या करना पड़ा, एलीज बनाना पड़ा। किस किस के साथ एलीज बनाना पड़ा, बताओ, कितनी पॉलिटी रिवाइज हो रही है, नरेंद्र मोदी को किन दो पार्टीज, किन दो स्टेट की गवर्नमेंट के साथ एलीज बनाना पड़ा। एलीज का समझ आ जाएगा, मतलब दैट इज कंबाइन करनी पड़ी अपनी सीट्स। जल्दी से बता दो, विच वर द टू पार्टीज, कौन सी दो स्टेट्स थी। या एक तो आ गई बिहार, दैट इज व्हाट आर द फेमस पीपल इन दैट इज, एक उनको किस किस के साथ करना पड़ा, वन वाज विद द नीतीश कुमार एंड अदर वाज द नायडू, राइट। तो इन दोनों के साथ उनको क्या करना पड़ा, पार्टी को क्या करना पड़ा, अलाइज, दैट इज अलाइज बनाना पड़ा, मर्ज करना पड़ा, राइट। बिहार एंड तेलंगाना, राइट, गुड। सो लेट्स रिवाइज ऑल द वर्ड्स व्हिच वी हैव डन सो फार। इट इज स्पाइक का मतलब क्या था, राइज करना। एक्यूज का मतलब ब्लेम करना। एक्स्ट्राडिटेड का मतलब किसी को वापस भेजना। अटर्नी, लीगल एडवाइजर। देन इट इज योर एक्सपंक्शन, एक्स मतलब बाहर निकाल देना, रिमूव करना, इरेज करना। एक्सपंज, इरेज करना। स्कैथिंग आ गया, बहुत फियर्स अटैक आ गया। मैंडेट, अथॉरिटी आ गया। पैरासाइट, कोई किसी के ऊपर रहता है। एलीज, दैट इज द पार्टीज व्हिच लिव अलोंग, है ना, एक यूनिटी बनाना, दैट इज टर्म्ड एज योर एलीज विद इट। आई होप यहां तक सबको क्लियर है। So these were something important words which we have discussed. यहाँ तक इन वर्ड्स में किसी को प्रॉब्लम? So there are two techniques. जब वर्ड्स पूछे जाते हैं vocabulary के, तो बेसिक टारगेट्स होता है, कुछ idioms जो चलते हैं, that is there in the newspapers, the examiner can take that portions too, and the ones which we do it through mnemonics. अभी बताओ किसी को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, and then we are going to start with the practice set, the questions. स्कैथिंग होता है जब किसी पे फियर्स करके अटैक करते हैं, मतलब बहुत बुरा अटैक करना, सो दैट इज स्कैथिंग, राइट। स्कैथिंग, दैट इज you are making a ferocious attack on someone, not taking care of other person. कोई क्या सोचता है, बहुत blunt attack करना, maybe through your language, maybe the other way, right। और कोई प्रॉब्लम किसी वर्ड में, clear as words, जल्दी से बोल दो। if the words are clear we can start with the discussion now. Clear, good. Now tell me one more thing, you want more, like you like more from the newspapers one, mnemonics one, कैसे पसंद है, या दोनों का combination?
जल्दी से बताओ, because whenever I am popping up, picking some words from you, it gets easier for me, like what you guys like more. So is it from the more from the newspaper ones, so that the Hindu, every newspaper are being covered? Because there are lots of idioms also which are very prominent in the newspaper. So apart from the books, कुछ करंट के हमें करना है, right? और कुछ होते हैं निमोनिक्स से जो आपको इजी टारगेट करना होता है. जैसे मैंने एक वर्ड बोला था कल, एब्सिशन. क्या होता है एब्सिशन? किसको याद है? What is abscission? To cut. Good. तो हर चीज का अपना है. किसी को आपको न्यूज़पेपर से भी समझना पड़ेगा. तो by the end you can just tell me what is a portion more comfortable for you. We can start with that portion, right? So whenever I'm coming up with the next video of mine, I'll make a compilation कि एक वीडियो आपकी एक हफ्ते में एटलीस्ट vocabulary का पूरा पोर्शन हो, तभी आपको vocabulary भी easier grasp हो जाएगी. Because as the paper is approaching, we need to complete our vocabulary too, because it carries good portion, guys, right? So that I'll discuss by the end too, what you need to do and how you need to strategize it out. Let's start with the very first question now. The question states that it was the help he got from his friends which dashed him through the tragedy. It was the help he got from his friends which dashed him through the tragedy. क्या आएगा? उसको हेल्प मिली अपने फ्रेंड से, जिसने क्या किया उसको ट्रेजेडी से. A, supported. Very good. So everyone, it will be that it was the help which he got, and that is why he was supported. He was supported by his friends and society. Good. So it is supported is the right word over here. Okay. Let's go with the next one now. Just tell me the next answer. Go for this. Anil got the company car for a dash price as he was senior most employee in the company. अब उसको जब वो बहुत ज्यादा एक सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय है तो उसको कैसे प्राइस पे मिली होगी? कैसे प्राइस पे मिली होगी जब वो एक वो है, अथॉरिटी है. B, no, it's not discounted price. Discount तो एक proper एक term हो गई, which is there for the people. It is for the nominal price. बहुत कम price पे मिल गई because he was a senior most employee in the company, so he got it at a very less price. That is nominal price. Go for the third one. His dash of the topic was so good. His dash of the topic was so good that the students had few doubts to raise at end. His dash at the topic. अब हिज पिक्चराइजेशन मतलब क्या चीज अच्छी थी कि स्टूडेंट्स को बहुत कम डाउट हुए एट द एंड. तो कोई चीज अच्छी होगी. हिज क्लैरिटी, हिज एक्सपोजर, हिज एक्सपोजिशन, हिज पिक्चराइजेशन. व्हाट कैन बी गुड दैट द स्टूडेंट्स हैड वेरी गुड टॉपिक्स. सी इफ यू हैड अ डाउट ऑफ क्लैरिटी, एक चीज याद रखना, क्लैरिटी उस पर्सन को होती है. जब मैं आपको समझा रही हूँ आप लोग को क्लैरिटी होगी, मेरे क्लैरिटी होने से आपको अच्छा एक्सपीरियंस या नॉलेज नहीं हो सकती है, राइट? मैं अगर जितना अच्छा मर्जी पढ़ा लूंगी, मैं पढ़ाऊंगी तो आपको अच्छा लगेगा, ना कि मेरा कंसेप्ट क्लियर होगा. पिक्चराइजेशन से नहीं होता. अगर मैं पिक्चर दिखा दूं, आई शोड यू अ पिक्चर, दैट्स नॉट पॉसिबल. एक्सपोजर, मुझे कितना एक्सपोजर है, दैट इज माय क्लैरिटी, दैट इज गुड फॉर माय क्लैरिटी. एक्सपोजिशन इज द एक्सप्लेनेशन. अगर मैं आप लोगों को अच्छी एक्सप्लेनेशन दूंगी तो ही क्या होगा, बच्चों को बहुत कम डाउट्स होंगे. सो दैट इज, एवरीवन इज रॉन्ग इन इट. इट इज एक्सपोजिशन. अगर मेरे टॉपिक की पढ़ाई हुई, टीचिंग बहुत अच्छी है, एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छी है, then only you will have a very few doubts. Otherwise you will have a lot of doubts. Clear with this one now? It's A answer, and that is exposition, right? Go for the next one now. Beauty is to ugliness as adversity. Now this is a kind of antonym you have to choose. Beauty is to ugliness, adversity is to, very easy. क्या आएगा adversity is to? जल्दी से आंसर बोलो. वेरी इजी ऑप्शन सी. कैसे आ गया? एडवर्सिटी का मतलब भी क्या होता है? नेगेटिव.
ये आंसर है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। तो जो नेगेटिव वाले हैं तो पहले ही क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम नेगेटिव नेगेटिव नहीं कर सकते। एडवर्सिटी का ऑपोजिट क्या होता है? प्रॉस्पेरिटी इज द ऑपोजिट ऑफ एडवर्सिटी, राइट? सो बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, गो फॉर द फिफ्थ वन। क्या आएगा फिफ्थ पे? All of us should abide dash the laws of our country. Abide ये कल भी पूछा गया था, एक फ्रेजियल वर्ब था। abide के साथ क्या लगता है? abide, what is there? by, abide by होता है, मतलब abide by करना मतलब follow करना चीजों को, so that is abide by. Go for sixth one. Everyone in this universe is accountable to God dash his actions. अब अपने एक्शंस के लिए आप अकाउंटेबल हो, फॉर योर एक्शंस, ऑफ योर एक्शंस, अगेंस्ट योर एक्शन, अबाउट योर एक्शंस। किसके लिए आप अकाउंटेबल हो? इट इज A option, very good. For your actions, you are accountable, right? So you're very accountable for his actions. Go for seventh. I am never miss a cricket match. I dash fond of cricket. Now a hint, guys. Since childhood है पीछे. अब पीछे जब since childhood है, otherwise I के साथ am आता है. Now tell me what will be there. Very good. Pravalika is right. It is have been, that is the answer, क्योंकि पीछे since या for है। जब since या for होता है पीछे तो हम क्या लगाते हैं? perfect tense लगाते हैं। Go for eighth one. He ordered his servant dash. If he could bring a glass of water, that he brings a glass of water. To bring a glass of water, that he should bring a glass of water. What will be there? He ordered his servant. अब वो क्या वो ला सकता है? दैट टू ब्रिंग या दैट ही शुड ब्रिंग? वेरी इजी ऑप्शन, सी ऑप्शन गाइस। एवरीवन इज राइट, टू ब्रिंग अ ग्लास ऑफ वाटर। सो दैट इज एन इंस्ट्रक्शन, टू ब्रिंग करना, इंस्ट्रक्शन देना। वेरी गुड। नाइन्थ, दो बिंदु इस पर। अब दो के साथ क्या लगेगा पीछे? ये याद रखो, रूल्स कराए थे मैंने। अब ये याद है लेस्ट के साथ क्या लगता है? यू शुड नॉट फॉरगेट। नॉट ओनली के साथ, ये अब रूल्स यहाँ पे काम आते हैं। नॉट ओनली के साथ क्या लगते हैं? नो सूनर के साथ क्या लगता है? दीज आर द रूल्स। और जल्दी से बता दो बाकी रूल्स में क्या क्या लगता है। दो ऑल दो के साथ क्या लगता है? ये हमने सब रूल्स किए हुए हैं। दो ऑल दो के साथ क्या लगता था? दो हो चाहे या फिर ऑल दो हो, हम लगाएंगे इसके साथ येट लगाते हैं, राइट? अब बाकियों के साथ बताओ, लेस्ट के साथ क्या लगता है? LEST के साथ। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर। लेस्ट के साथ क्या लगता है? व्हाट कम्स विद लेस्ट? शुड। वेरी गुड, अनूप इज राइट। लेस्ट के साथ लगता है शुड। नाउ सी, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं। नॉट ओनली के साथ क्या लगता है? ये प्रोवर्ब्स है, लेस्ट नहीं तो, दैट इज लेस्ट, ठीक है? लेस्ट you should work hard lest you fail, that is नहीं तो फेल हो जाओगे, तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, राइट? नॉट ओनली के साथ लगता है बट ऑल्सो। वेरी गुड, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो। और नो सूनर, कल क्वेश्चन था, क्या दो चीजें देखते हैं हम नो सूनर के केस में? दो चीजें देखते हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं नो सूनर के केस में? हम दो चीजें देखते हैं। एक तो भाई दैन देखते हैं, ठीक है। दूसरा कौन सा देखते हैं? एक बिल्कुल इसके साथ लगा होना चाहिए। वो क्या वर्ड होता है? दो वर्ड्स होते हैं जब नो सूनर के बिल्कुल साथ आने चाहिए। कौन से वो दो वर्ड्स होते हैं? बता दो। व्हाट आर द वर्ड्स व्हिच कम विद नो सूनर? जल्दी से बताओ, क्या आएगा नो सूनर के साथ? हैड आएगा या फिर डिड आएगा? हैड भी आ सकता है, डिड भी, मतलब एक बी वाला वर्ब होना जरूरी है, ये याद रखना, which is very important। नो सूनर पे भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं, राइट? Go for the 10th one. A determined effort will be needed to restrict the country's dash social services. एक determined, एक बहुत जरूरी एफर्ट चाहिए टू रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कंट्री की सोशल सर्विसेज। कैसी सोशल सर्विसेज? अब रिस्ट्रिक्ट किसको करोगे? प्रोलिफिकेट करना, प्रॉफिट करने वाली, वैरायटी वाली, रहने वाली, या फिर योर एक्सपेंसिव वाली?
कौन सी सर्विसेज को हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ये सोचो. सम थिंग्स आर वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. What is there, guys? Oh, rarely there is like if I change my words. आज मैं बोल रही हूँ important है, कल को बोलो मैं नहीं important है. That is random. Random is when you change your opinion या फिर आप किसी चीज को refuse type करते हो. That is random. A profligate is like something that is expanded. आप किसको remove करोगे? देखो आपके पास 5 options है. सबसे negative option कौन सा लगता है? Expensive services को आप खत्म करोगे क्योंकि वो expensive है. तो आप सोशल सर्विस करो, अगर आप बहुत महंगी महंगी कर रहे हो तो सरकार उसको क्या कर पाएगी, बियर नहीं कर पाएगी. तो दैट इज एक्सपेंसिव. द मोस्ट नेगेटिव इज एक्सपेंसिव गाइस. वेरी इजी, सबको पता है एक्सपेंसिव का मतलब भी. तो गो फॉर द इजी टारगेट आंसर्स. बहुत आपको टफ नहीं आते हैं. अगर आप कोई पुराना पेपर निकाल लोगे एचपीसीएल का, आई टेल यू विल बी एबल टू सॉल्व इट आउट. आप देखना ऑप्शंस के बेसिस पे, ऑप्शंस टफ नहीं है, सिर्फ आपको अंडरस्टैंड करना. ऑप्शंस बहुत इजी आती है आपको, एक ही तरह की होती है एचपीसीएल में, यही बेस्ट चीज है. Go for the next one, 11th. I am connected, not concerned dash him that business. अब ये देखो, ये prepositions fill करने वाली हैं आपकी. क्या आएगा इसमें preposition में? Think carefully what will be there in the preposition. I'm not concerned for him. I'm not concerned with him. I'm not concerned by him. आपको याद है मैंने एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ बताया था कि जो लिविंग बीइंग्स होते हैं उसके साथ कौन सा प्रेपोजिशन लगता है, याद है? विद किसके साथ लगता है, ये भी मैंने बताया था कल. विद किसके साथ लगता है, टेल मी फास्ट. विद लगता है आई एम राइटिंग डैश पेन. कोई इंस्ट्रूमेंट्स है दैट वी यूज विद. पर मैंने ये बताया था कि लिविंग बीइंग्स के साथ क्या लगता है. तो इसमें विद वाला तो पहले ही कैंसिल हो जाना था. सोचो खुद ध्यान से, जो विद बता रहे हो. विद लगता था नॉन लिविंग के साथ. और फिर मैंने एक ऑप्शन प्रेपोजिशन की क्लास में रूल्स बताए थे कि एक विद के साथ लगता है, दूसरा ऑप्शन क्या था उसके कॉन्ट्रास्ट में, जो लिविंग थिंग्स के साथ लगता है. बाय, वेरी गुड. बाय हिम इन दैट बिजनेस, ये सही है, राइट? So you need to understand the rules which we have done. With comes with non-living things. Normally objects आ जाता है, exceptions है कुछ. I always say exceptions are there, but तुम लोग को भी main target करो. And living beings के साथ क्या लगता है? By लगता है. Easy, right? Go for 12th. He deals dash foreign goods only, but our firm deals dash several leading merchants who trade dash a variety dash goods. अब देखो, एक तो तुम्हें हैक मिलना चाहिए. वैरायटी के साथ क्या लगता है? अ वैरायटी ऑफ गुड्स होता है ना? तो जहां पे तुम्हें ऑफ नहीं दिख रहा वो तो तुम एलिमिनेट कर दो. सबसे इजी ऑप्शन एक तुम्हें मैंने एलिमिनेट कर दिया, ठीक है? हु ट्रेड, ट्रेड किसमें करेंगे? अब ट्रेड डैश वैरायटी. तुम अगर स्टार्टिंग वाला नहीं लगता, तुम एक एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा करो क्वेश्चन को. दैट इज डू इट बाय एलिमिनेशन. टाइम कम लगेगा बिकॉज इन द पेपर यू नीड टू सेव टाइम आल्सो, लाइक जिसमें जितना कम टाइम लगे. आप देखो वैरायटी, वैरायटी हु ट्रेड विद द वैरायटी ऑफ गुड्स, हु ट्रेड इन अ वैरायटी ऑफ गुड्स. क्या आएगा? हु ट्रेड विद द वैरायटी ऑफ गुड्स. ध्यान से सोच लो क्या आएगा. गो अहेड गाइस, क्या आएगा इसमें? he deals dash. सोचो, in a variety with the variety. very good. विद नहीं आता, इन अ वैरायटी. जब किसी चीज के अंदर से डील करते हो. प्रेपोजिशंस की क्लास, किस किसने प्रेपोजिशन की क्लास नहीं सुनी है अभी? दैट वाज द वेरी फर्स्ट क्लास व्हिच आई टुक ऑन द पैनल. आई थिंक फर्स्ट और सेकंड क्लास जो प्रेपोजिशंस की हुई थी. किस किसने प्रेपोजिशन की क्लास नहीं करी है? उसमें मैंने बताया था इन होता जब लार्ज ह्यूज अमाउंट है तो इन आएगा. ही डील्स इन अ वैरायटी. और देखो यहाँ पे विद, ये भी विद, ये दोनों ही एलिमिनेट हो गए. बचा क्या? डी ऑप्शन. इजी, it's very easy peasy. all you have to do is understand that x. he deals in foreign goods. अब देखो goods है, ज्यादा goods है, उसमें डील करता है. but our firm deals, हमारी फर्म किसमें करती है? our firm deals with. हम जिसके साथ डील करते हैं और जिसमें डील करते हैं, there is a difference. we deal in something or we deal with something. हम किसी फर्म के साथ डील करते हैं with, हम इस एरिया में डील करते हैं, हम in करते हैं. तो there is a difference between in and with in that case. क्लियर हो गया 12 सबको? गो फॉर 13th.
The controversy is likely to create dash between two communities. अब कंट्रोवर्सी है तो पॉजिटिव क्रिएट करेगी कि नेगेटिव क्रिएट करेगी, पहले तो ये सोच लो. कंट्रोवर्सी पॉजिटिव क्रिएट करती है कि नेगेटिव क्रिएट करती है? जल्दी से बताओ, पॉजिटिव या नेगेटिव? एमिटी इज पॉजिटिव, बिटरनेस इज नेगेटिव, रिवेंज इज नेगेटिव, डाउट इज अ न्यूट्रल वर्ड. नेगेटिव आएगा. वेरी गुड. तो पॉजिटिव तो हमने कर दिया एलिमिनेट और हमने न्यूट्रल भी एलिमिनेट कर दिया. हमारे पास दो ऑप्शन है. द controversy is likely to create dash between the communities. क्या आएगा? What it will create? B. Very nice. Keshav is right. Bitterness. Revenge लिया जाता है किसी के साथ. Bitterness कड़वाहट पैदा की जाती है. तो that is bitterness between the countries. Good. Go for 14th. She is much too dash. So it should be too much. Dash to have anything to do with that obnoxious fair. अब she is उसको उस affair से कुछ लेना नहीं है. तो वो पॉजिटिव है, नोबल है, हैप्पी है, पॉजिटिव, प्राउड, पॉजिटिव, हैस्टी, दैट इज अ न्यूट्रल वन. बताओ what will be there? She is dash too much to do anything with that. So what will be there in 14th everyone? Hasty होता है, hasty cannot be there guys. Hasty होता है बहुत तेज हो, एक न्यूट्रल वर्ड है. जब आप बहुत क्विक होते हो किसी चीज में, आपको किसी के अफेयर से, किसी चीज से लेना देना नहीं है, तो आप कैसे इंसान होगे? आप हैप्पी इंसान हो, आप प्राउड इंसान हो. प्राउड भी आप नेगेटिव में लेकर जा सकते हो. वैसे आप हैस्टी हो, बड़े क्विक इंसान हो, या आप नोबल इंसान हो? सोचो कैसे इंसान होगे जब किसी से फर्क नहीं पड़ता? Think Deep is right. It is C option. Noble. A noble person has nothing to do with any person. Stoic is who is straight faced. Stoic का मतलब होता है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता. Who is, but यहाँ पे है जैसे अब कोई अफेयर चल रहा है किसी का, उसके बारे में कोई rumor spread हो रहा है, but the person does not give anything like that. So that is a person does not feel. He's very noble to think about those negative things in his life. Go for 15th. It is his dash in his family's position is great, but he does not boast about it. अब क्या पॉजिटिव होगी? उसकी फैमिली की पोजीशन के बारे में एक चीज अच्छी है, तो वर्ड क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? ये सोचो कि पॉजिटिव और नेगेटिव. डिसीट आ गया नेगेटिव, प्राइड ले लो नेगेटिव, प्रिजम्पशन स्टेटस आ गया एक तरह का न्यूट्रल है, प्रिजम्पशन भी न्यूट्रल है. I don't know about Natasha Stankovic. ओके गो हेड. इसका क्या आएगा? क्या उसकी अच्छी होगी पोजीशन? उसकी फैमिली में क्या अच्छा होगा कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो बोस्ट नहीं करता है? स्टेटस. गुड. एवरीवन इज राइट. द स्टेटस ऑफ हिज फैमिली इज ग्रेट, दैट इज व्हाई ही डज नॉट बोस्ट अबाउट इट. गुड. गो फॉर 16th. माय फिंगर्स आर स्टिल डैश. सॉरी, just give me a second guys. I'll get it corrected. Till then, any person go ahead with your doubts. अपने डाउट्स पूछ लो जब तक मैं इसको करेक्ट करवा रही हूं. किसी को यहां तक कोई डाउट्स? बताओ. एनी पर्सन विद एनी डाउट टिल है? जितने भी हमने क्वेश्चंस किए हैं, फ्रेजेस किए हैं, किसी को कोई डाउट हो यहां तक? एनी पर्सन? I'll just get it corrected. Any person, any doubts till then? बताओ. And last question. Exam is near. The strategy we'll be discussing it out. Don't worry.
Date has been a downside is prevalent. क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? अभी still, if you count it out, you have more than a month. And I tell you, in a month, it is very easy to prepare the examination. I'll tell you the tricks also, क्या क्या चीजें आपको चूज करनी है. तो उसके लिए हम एंड पे डिस्कस करेंगे. थोड़े से क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं. Then we'll devote 5-10 minutes for the discussion. Don't worry. ठीक है? तो अभी करते हैं 17 क्वेश्चन. Non-violence. Non-violence is the law of saints as violence is the law of dash. अब बोलते हैं कि नॉन वायलेंस तो भाई अच्छे लोगों की निशानी है, तो वायलेंस किन लोगों की निशानी है? पॉजिटिव की कि नेगेटिव की? बताओ, पॉजिटिव की निशानी है या नेगेटिव की निशानी है? नेगेटिव की. गुड. अब इसके पास आपके नॉर्मली ये सारे वर्ड्स ही नेगेटिव है. अब हमारे पास पॉजिटिव नहीं है, तो इसमें हमारा एलिमिनेशन मेथड क्या करेगा? वर्क नहीं करेगा. ब्रूट, हॉटी. हॉटी होता थोड़ा एरोगेंट, इग्नोरेंट जिनको पता नहीं है, कॉवर्ड जो छुपे हुए हैं. और ब्रूट क्या होते हैं? एनी पर्सन हु कैन टेल मी क्या होता है मीनिंग? मॉन्स्टर्स, जो बीस्ट होते हैं, जो सेवेज होते हैं. गुड. तो दिस इज द ओनली वन व्हिच इज द मोस्ट नेगेटिव. दैट इज the violence is the this of brute. Brute is some people who are very much negative, brutal, लड़ने वाले. और fierce होते हैं, they are the brutes, right? Go for 18th. We felt as if the ground were dashed beneath our feet. हमारे नीचे ग्राउंड क्या हो रहा है? burst हो रहा है, sink हो रहा है, slip हो रहा है, या smash हो रहा है? क्या हो रहा है हमारे नीचे? We felt as of the ground. हमारे नीचे जो ग्राउंड है वो क्या हो रहा है? सी ऑप्शन. हम बोलते हैं ना कई बार हमारे हमारे जमीन नीचे फिसल रही है, तो क्या बोलते हैं हम उसको? हमेशा ये बोलते हैं जमीन नीचे से फिसल रही है, इससे ये हो रहा है. इट इज स्लिपिंग. वेरी गुड. स्मैश होता है तोड़ना, किसी चीज को ब्रेक करना, दैट इज स्मैशिंग. सिंक होता है खुद बीच में दफन हो जाना. बर्स्ट इज एक्सप्लोडिंग. तो वी ऑलवेज से इट आउट, इट इज स्लिपिंग इनसाइड. गो फॉर 19th. The task seemed impossible, but somehow he dashed very skillfully in the end. अब टास्क जो था इम्पॉसिबल था, नेगेटिव, लेकिन उसने स्किलफुली कर लिया, मतलब पॉजिटिव. पुल्ड इट अवे, दूर लेकर जाना. पुल्ड इट अप, पुल्ड इट ऑफ, पुल्ड इट आउट. क्या आएगा? दीज आर द फ्रेजियल वर्ब्स नाउ गाइस, जहां पे सेम रहते हैं. एक प्रेपोजिशन से सारा मीनिंग क्या होता है? चेंज हो जाता है. It changes with the preposition. Pulled it off, off आ गया, that is to end it out. Away मतलब होता है दूर लेकर जाना. आपके पास ऑप्शंस आती है pulled it out या pull it up. सोचो ध्यान से. उसने टास्क को स्किलफुली क्या कर दिया? खत्म कर दिया उसने टास्क को. क्या आएगा इसका? सी सी सी. वेरी गुड. पुल इट आउट मतलब उसने बहुत जल्दी उसको क्या कर दिया? रिमूव कर दिया. टास्क को इंपॉर्टेंट चीजें थी, उसको खत्म कर दिया. तो सी इज द राइट ऑप्शन, दैट इज पुल्ड इट आउट. नाउ दिस, द एनिमी पेड अ लार्ज सम एज रिड्रेस, रेस्टिट्यूशन, कंपेशन, कंपनसेशन, पनिशमेंट, अमेंड्स. क्या किया होगा एनिमी ने? पे एनिमी पेड लार्ज सम एज क्या? कंपनसेशन उसने दी होगी एनिमी ने, उसने पनिशमेंट दी होगी, रिड्रेस दिया होगा, रिड्रेसल मतलब रीअप्रोच करना, अमेंडमेंट दी होगी, अमेंडमेंट नहीं कर सकते हम लोग, रेस्टिट्यूशन क्या दिया होगा? इट इज कंपनसेशन. वेरी गुड. इट इज पनिशमेंट नहीं दे सकता, वी कैन नॉट बी देयर. हम एनिमी हमें पनिशमेंट कैसे दे सकती है? हम एनिमी को पनिशमेंट दे सकते हैं, राइट? सो इट इज कंपनसेशन इज द राइट वर्ड ओवर है. Go for 21. The unruly behavior of the soldiers dash their commander. The unruly behavior of the soldiers dash their commander. अब जो बिहेवियर है उनके क्या है? सोल्जर्स का, कमांडर को क्या करेगा? इंसेंस करेगा, इम्पीच करेगा, एग्रीव्ड करेगा. व्हाट विल बी देयर? पहले तो ये बताओ इसका आंसर पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा? क्योंकि कैसा बिहेवियर होगा? सोचो क्या आएगा?
So it is everyone is word D answer. Tempered. देखो अनरूली बिहेवियर है, जब बिहेवियर अनरूली है तो मतलब क्या है, दैट इज नेगेटिव बिहेवियर ऑफ द सोल्जर्स डैश देयर कमांडर। तो ऑब्वियसली अगर बिहेवियर नेगेटिव है तो आंसर क्या होगा, कमांडर को भी क्या होएगा, गुस्सा आएगा। ठीक है, तो इट इज एग्रीव करना मतलब थोड़ा और तेज, मतलब इंक्रीज करना समथिंग, इम्पीच करना। इन सेंस होता है किसी को गुस्सा दिलाना, एंड इट इज इम्पीचमेंट। जब बोलते हैं ना हम गुस्सा दिलाते हैं, तो जब आपके जूनियर्स आपसे बुरा बिहेव करेंगे तो आपको क्या आएगा, गुस्सा आएगा, right? So it will be A option, guys. Incensed आएगा. It won't be B and D. Everyone is wrong over here. It is your incensed. That is the right answer, right? Incensed होगा their commander, उनको गुस्सा दिलाया गया. Go for 22nd now. Jayant was so good at mathematics that his friends considered him to be a dash. भाई जयंत मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था कि उसके फ्रेंड्स ने उसको क्या समझा, प्रोडिजी। यहाँ पे अगर कोटा फैक्ट्री किसने देखी है तो उसमें प्रोडिजी वर्ड है। क्या होता है प्रोडिजी का मतलब? हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन कोटा फैक्ट्री? क्या होता है? एनीवन? किसने कोटा फैक्ट्री देखी, पहले तो ये बता दो। सीन? ऐसे इंस्पायरेशन, वो कहते हैं ना मोटिवेशनल मॉन्स्टर, की एक्चुअली सी इट आउट। दैट इज समवन हु स्टडीज। जैसे प्रोडिजी होता है कि इंटेलिजेंट, तो ऑब्वियस सी बात है अगर वो बहुत ज्यादा पढ़ रहा है, वो इतना अच्छा है, तो वो क्या है उनके लिए ये प्रोडिजी वर्ड आ जाता है, नेचुरल टैलेंटेड एंड ऑल दैट। गुड, सो टैलेंटेड ही मानेंगे ना उसको, सो दैट इज अ राइट वन। गुड। 23rd क्या है? दैट इज व्हेन राजू heard the news of his selection to the college team he felt। अब जब तुम्हें पता चलेगा तुम सिलेक्ट हो गए हो, राइट? जब तुम्हें ये चीज पता चले कि तुम पेपर में सिलेक्ट हो गए तो तुम्हें कैसा फील होगा? प्रशांत, I'll discuss, let me go back to the question first। ये क्वेश्चन सॉल्व करो फिर मैं वापस बैक पे चलती हूँ। बताओ, if Raju heard the news, if you hear the news that you are getting selected, you will feel what? You will feel positive or you will feel negative? बताओ, पॉजिटिव लगेगा कि नेगेटिव लगेगा? What will you feel? इससे डिनोट हो जाएगा आपका, इलेटेड होता है हाइट पे हो जाना, राइट? एफर्विसेंट होता है, एनामर्ड क्या होता है? जल्दी से, मैंने मीनिंग्स कराए हुए हैं क्लास में। एनीवन? अब मैंने ये चीज तो आपको बोली, गुड गाइस, एवरीवन इज डूइंग इट आउट। अब मैंने तुम्हें ये चीज बता दी कि पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा। गुड, तो इसमें आ जाता है ये भी नेगेटिव मीनिंग आ गया, ये भी नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया, 3 पॉजिटिव है। तो नेगेटिव वाले तो क्या हो जाएंगे हमारे, ये हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। वी आर लेफ्ट विद 3। इनामर्ड होता है व्हेन यू आर इन लव विद समवन, यू आर इनामर्ड, राइट? और ये याद रखना, जब हम क्वेश्चन में भी मीनिंग्स करें तो आपको याद हो, रिटेन हो, राइट? So that is enamored with something, that is in love with something, right? And elated is, that is something frizzy and that thing, right? Happy moment होती है ये भी, but it is lighter। elated होता है जब आप high level पे चले जाते हो। So obviously, if you are selected in the examination, you will be elated, you will be over the heights, over the, you can say over the moon and all. So that is your elated आ जाता है इसका आंसर। 24th, a son who is unable to look his father in the face is। अब कोई बच्चा है वो अपने फादर को देख नहीं पा रहा ऑन द फेस, इट विल बी अ पॉजिटिव वर्ड और अ नेगेटिव वर्ड? गिल्टी नेगेटिव, अशेम्ड नेगेटिव, एरोगेंट नेगेटिव, टिमिड नेगेटिव। All things is Weber, what are the methods to do and how to have a strategy of English, we'll discuss in the next 5 to 6 minutes। So let's solve a few questions left, उसके बाद हम ये सारे solve करने वाले हैं। We'll discuss about all the paper strategies। जब बच्चा अपने फादर को देख नहीं पा रहा है तो वो क्या दिक्कत हो सकती है? What in the face? He is what? सारे ही नेगेटिव वर्ड्स हैं हमारे पास। अब देख लो, एवरी वन ऑफ यू इज सेइंग इट आउट एज अशेम्ड। हमारे पास कॉन्टेक्स्ट है। डू यू हैव अ कॉन्टेक्स्ट कि उसने कुछ गलती की है? वी डोंट हैव अ कॉन्टेक्स्ट। इट इज व्हेन यू लैक द कॉन्टेक्स्ट, यू कैन नॉट मिस fill it with that blank in English। इंग्लिश में एक रूल है, जितना कंटेंट प्रोवाइडेड है उसी के बेस पे आप आंसर दे सकते हो। इफ द कंटेंट इज नॉट प्रोवाइडेड टू यू, यू कैन नॉट आंसर दैट थिंग। वी आर नॉट श्योर उसने कोई गलती की है इसलिए वो शेम है, वो एरोगेंट है। हाँ, उसमें कॉन्फिडेंस की क्या है, कमी है,
वो शायद अपने फादर को, इसलिए वो डरता है अपने फादर से. कई लोग होते हैं बिना गलती के भी क्या होते हैं, अपने फादर से डरते हैं, बिकॉज द फादर इज वेरी, यू कैन से इट आउट, his the way of speaking might be rude, or he's not very confident, or he's very angry kind of a person, so that is termed as. तब आप ये देखो, एरोगेंट तो हो नहीं सकता, ये दो वर्ड्स हैं, लेकिन हमारे पास डाटा प्रोवाइडेड नहीं है. सर नाउ क्लियर, everyone clear with it? Now go with the next one. 25th, he said that he was not going back because his decision was dash. अब वो बोल रहा है कि मैं वापस नहीं जाने वाला, क्योंकि उसका डिसीजन कैसा था? His decision was peremptory, his decision was premeditated, palatable or parsimonious. कैसा डिसीजन था उसका कि वो बोलता है यार मैं तो वापस नहीं जाने वाला हूं. What kind of decisions will be there? ध्यान से करना. सेम वे अब आपको देखो कि उसका डिसीजन कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा. What kind of a decision? और हर वर्ड को कोशिश करा करो समझने के लिए. पार्सिमोनियस एक वर्ड है जो मैंने बहुत बार कराया है क्लास में. क्या होता है पार्सिमिनस? इसका ऑपोजिट भी क्या होता है? पारसी लोगों से याद कर लो ऐसे. बताओ. प्रीएम्पटरी, नो आइडिया रिगार्डिंग व्हाट मैम. ओके, नो वरीज. नाउ सी, देखो पार्सिमोनियस होता है, ये वर्ड्स मैंने सिनोनिम मैंने क्लासेस में बहुत बारी बोला है ये वर्ड. दैट इज समवन हु रिलक्ट्स इन स्पेंडिंग. जैसे होता है ना, कई लोग होते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट होते हैं, बहुत पैसा खर्चते हैं भाई, है ना. एक होते हैं कंजूस कैटेगरी, माइजर होता है जो नहीं खर्चते हैं पैसा. सो दैट कम्स एज पार्सिमोनियस, हु डज नॉट स्पेंड मच ऑफ द मनी. इससे कुछ लेना देना नहीं है. तो ये तो हमारा आंसर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया. पैलेटेबल, पैलेट सर्व होती है, दैट इज समथिंग दैट इज वेरी गुड इन टेस्ट. जब आप टेस्ट वाइज देखते हो कोई चीज बहुत अच्छी है, टेस्टी है, दैट इज पैलेटेबल. ये भी कैंसिल हो गया क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए चीज, राइट. नाउ वी आर लेफ्ट विद टू वर्ड्स, पैरेम्पटरी और प्रीमेडिएटेड, राइट. तो प्रीमेडिएटेड होता है जो एकदम से हो गया हो आपके साथ, राइट. एंड दिस इज समथिंग, प्रेम्पटरी इज स्टेटस जब आपने एक फर्म चीज ले ली हो, तो यू विल ऑलवेज से इट आउट एज प्रेम्पटरी, दैट इज प्रीएम्पटरी, दैट इज हिज डिसीजन वाज दिस. तो ये वाला vocab बेस्ड था प्रॉपर वर्ड आपका. 25th was already based on your vocabulary. So it is peremptory, that is already on spot, strict, firm, domineering one, जिसको आप choose कर चुके हो, right? Go for the 26th. Progress in government, size, art, literature, philosophy and religion dash create civilization from mere groups of communities. अभी क्या करते हैं, जो प्रोग्रेस है कम्युनिटीज का, ग्रेट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेयर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज. मेयर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज से ये सारी चीजें क्या करती हैं, एक्सटेल करती, डिस्क्राइब करती, रेलिंक्विश करती, डिस्टिंग्विश करती हैं. गुड, प्रशांत इज वेरी क्विक इन दिस. इट डज नॉट डिस्क्राइब, इट डिस्टिंग्विशेस आउट. जब गवर्नमेंट प्रोग्रेस करती है तो वो छोटे ग्रुप से हम क्या कर देते हैं, डिस्टिंग्विश कर देते हैं उन चीजों को, राइट. सो दैट इज डिस्टिंग्विशेस ग्रेट सिविलाइजेशन फ्रॉम मेयर ग्रुप ऑफ कम्युनिटीज. 27th, since there was adequate grazing area for the herds, the land was dash populated. Adequate area था, the land was dash populated. Land कैसे populated थी? 27. Very nice guys. It is sparsely populated. So it was, so there was adequate, बहुत ज्यादा एरिया था, तो population क्या होगी, कम होगी. तो that is sparsely populated. Inadequate is not a word for the population. It cannot be there. Inadequate. Inadequate होता है कम मात्रा में, and that is for the things and all that. अब rustically हो गया, that is to the basis of rural areas and all. Disproportionately नहीं हो सकता. अब new owners of the paper change the dash completely. क्या change करते हैं, न्यू ओनर्स क्या चेंज करेंगे? Is the screen visible guys or the screen is not visible? Anoop, the signal is not visible. बाकियों को screen is visible? No, just wait for a second then. We'll get it right. Just wait for a second. Is the screen visible now guys? Okay, great.
Now see, the new owner of the paper change the dash completely. क्या change करते हैं वो? Outlay, outlet, खाने वाला outlet होता है. Layout या outlook. What will be changed? Very easy. Layout change होता है, right? तो paper का क्या change हो जाता है? Layout change होता है, क्योंकि layout करते हैं ना, कितना portion किसमें लिखना है. So that is layout is being changed. Good. Go for the next one now. 29th. This legend has been dashed from father to son. Sorry. अब फादर टू सन क्या होता है? हैंडेड इन होता है, हैंडेड आउट होता है. अब सेम वे आप देखो, आपके क्वेश्चन फ्रेजियल वर्ब से बहुत आते हैं एंड इवन इन द फाइनल्स भी आते हैं. हम एक क्लास सिर्फ फ्रेजियल वर्ब्स पे लेंगे और इसका डॉक्यूमेंटेशन है ऑलरेडी, वो पढ़ लेना, राइट? डॉक्यूमेंटेशन फ्रेजियल वर्ब्स के मैराथन्स बने हुए हैं, साइट्स पे पड़े हैं, वो अब देखना. क्या आएगा इसका? टेक योर टाइम एवरीवन, आई नीड योर आंसर्स. ट्राई चाहे गलत आंसर दिया करो, पर दिया करो एटलीस्ट. ये बहुत इजी है, ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. अब ये सभी लोग क्या करोगे? आप लोग आंसर हैंडेड ओवर आंसर करोगे. दैट इज व्हाई आई गिव यू इमेंस टाइम. हैंडेड ओवर आंसर करोगे, पर नहीं, दिस इज पासिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट जब आप कोई लेजेंड, कोई चीज है, दैट इज व्हाट यू डू इज दैट इज हैंडेड डाउन आता है. ठीक है? सो दैट इज व्हाई एवरीवन आंसर्ड इट रॉन्ग. हैंडेड ओवर सबने आंसर दिया, पर इसका एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा? हैंडेड डाउन आएगा. When you just give your responsibility to someone else, when you pass something from generation to generation, that is handed down, and that is the phrasal verb which I'm talking about. ये phrasal verbs होते हैं, बहुत minute differences होता है इसमें, right? I purposely kept this question because hand over करना होता है, pass on responsibility कर दिया हमने. पर legend कोई चीज है, जब हमारे पास handed down option में है ना, तो हम हैंड ओवर सिलेक्ट नहीं कर सकते. हमें सिलेक्ट करना होता है सबसे क्लोजेस्ट, और हैंड डाउन होता है. जैसे मैं कई बार ऑप्शन देती हूँ, इन दिया है, इनटू दिया है, तो इनटू कब लगता है? जहां पे इन मिसिंग होगा, जब जंपिंग आ गया. तो इस तरह से क्लोजर ऑप्शंस हमेशा हमारे जाते हैं आंसर्स में, राइट? तो दैट शुड बी योर आंसर. क्लियर? अब ये चीजें हैं, थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेंगी अच्छे से. दैट इज व्हाट यू हैव टू मेक योरसेल्फ कंप्लीटली नोन अबाउट इट. 30. Many young men were dashed at streets corners for the coffee bar to open. अब बहुत ज्यादा यंग मैन क्या कर रहे थे? हैंगिंग अबाउट कर रहे थे, ऑन कर रहे थे, हैंगिंग टुगेदर कर रहे थे, हैंगिंग बैक कर रहे थे, हैंग आउट कर रहे थे. क्या कर रहे थे बहुत ज्यादा? ई एवरीवन. अभी ध्यान से करना, सेम वे आई एम सेइंग यू आउट इज दिस. डू इट वेरी स्विफ्ट. दिस आप खुद सोचो, आप बहुत बार बोलते हो, दैट इज और से यू आउट इज, जब आप किसी के साथ करते हो, आज हैंग आउट करते हैं, दैट इज आप एक दूसरे के साथ क्या करते हो? टाइम स्पेंड करते हो, राइट? लेकिन आप जब यहाँ पे क्या है, द यंग मैन वो डैश एट स्ट्रीट कॉर्नर्स फॉर द कॉफी बार टू ओपन. कॉफी बार बंद है, आप क्या करोगे? वेट करोगे, राइट? जब आप वेट करते हो तो दैट इज हैंगिंग अबाउट आता है, हैंगिंग आउट नहीं होता है, राइट? हैंग ऑन भी होता है, हैंग ऑन, अ पॉज इज दैट, राइट? हैंग आउट होता है स्पेंडिंग टाइम लेयरली विद वन अनदर, दैट इज हैंग आउट. हैंगिंग बैक इज व्हेन यू जस्ट थिंकिंग, हैंगिंग टुगेदर किसी के साथ घूमना. तो इसका आंसर आएगा हैंगिंग अबाउट. एंड दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्रेजियल वर्ब्स. I have given you 10 to 15 questions for your homework as a class work. जो भी आप समझ लो इसको. डॉक्यूमेंटेशन डाउनलोड करना, I'll make it a point. डॉक्यूमेंटेशन अभी थोड़े टाइम में आपकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड हो जाए. इसको डाउनलोड करो, अपने आप क्वेश्चन सॉल्व करो. अब किसी को कोई क्वेरी है वो प्लीज पूछो. नाउ लास्ट 5 minutes विल कीप इट फॉर द क्वेरीज. टेल मी फास्ट, किसी को कोई क्वेरी है? गो अहेड गाइस. No queries now? By the start there were number of queries. Now no queries. Yeah, we have been having this session since last 3 days. अच्छा, for last 3 days या since last 3 days? क्या सही है? ये भी बता दो. You check your grammatical skills. For last 3 days or since last 3 days? क्या आएगा?
What will be the answer? For, very good. It's for 3 days. 3 आ गया ना, तो mathematical number आ गया. Good. So we are having the classes every day, and it depends on you guys. Like, how much is your availability at this time? Is 5 p.m. okay for everyone, or it should be a little early or late? सबको ठीक है 5 p.m. Since नहीं आएगा टेक विजय, it's wrong. Since होता है जब आप किसी subjective term की बात करते हो. For होता है कोई mathematical की. Is the time very okay for everyone? That is okay. That is 5 p.m. is fine, or it should be a little before that or after. You can just tell me because it is all about your convenience only. तो जल्दी से बता दो. It can be. It can be. It's nothing like that. कि आप पहले बात. That is why I'm saying you. Whatever is your priorities, whatever questions you have, किसी को कोई problem है किसी topic में, everyone can just put up in the comments. कई बार आपके topic की choice भी I choose it on the basis of comments only. कि किसी की preference होती है कि मैम tenses. So that is why I did tenses in the class. Otherwise I would not have done it here. So tenses हो गया, nouns हो गया, prepositions हो गया. Then it is all about the major topics क्योंकि आपने देखा है sentence और ये questions plus vocabulary. अब बताओ vocabulary के लिए you want a separate class और you want it like vocabulary जैसे हमने आज न्यूज़पेपर से किया जहां से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो what kind of a stuff, mnemonics or both or only that newspaper? How you want it? Because that's the best way of actually practicing it out. इससे आपकी understanding of English बहुत अच्छे से बढ़ सकती है. बताओ जल्दी से बता दो मुझे अपने सारी क्वेरीज. I'll give you last 3 minutes. 5, 6 and I'll end it out then. So 3 more minutes. Okay, phrasal I'll take it in a part कि phrasal हो जाए. Newspaper is fine for everyone. You can pop up your comments. That is why I say you because I keep a motivation from your side कि आपको कैसा content पसंद है. So similar way that depends on you. क्वेश्चंस या प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहेंगे. वोकैबुलरी का क्वेश्चन मैं पूछ रही हूँ आपसे बिकॉज एक लेक्चर में कंप्लीट वोकैबुलरी पे आई एम प्लानिंग इट आउट टू टेक अ कंप्लीट लेक्चर ऑन वोकैबुलरी ताकि आपकी हेल्प आउट हो सके. राइट कि जितना वोकैबुलरी प्रैक्टिस कर सको, इसको जितने इजी वे में प्रैक्टिस कर सको और जितना आपके ग्रास्प कर सको, क्योंकि अभी से लेकर अगर आप 3 तक ग्रास्प करोगे तो होगा. एक दिन पहले उठाओगे 17 को, 15 को, 14 को नहीं हो पाएगा. तब नॉट पॉसिबल. एक दिन में वोकैबुलरी नहीं हो सकती, इडियम्स नहीं हो सकते, फ्रेजेस नहीं हो सकते, कुछ नहीं हो सकता. ठीक है. निमोनिक्स चलो पॉप अप इन द कमेंट्स. ये सारा कमेंट्स पे पॉप अप करना. पार्ट्स ऑफ स्पीच एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. मैराथन पढ़ा है उसका. आई विल मेक अ न्यू मैराथन इफ यू वांट इट गाइस. अब पढ़े आपके बाकी पोर्शंस, टेंसेस वगैरह हम कवर कर चुके हैं. किसी को कोई डाउट हो दोबारा वो टॉपिक हो जाएगा. बट योर रिक्वेस्ट इज दैट जस्ट यू पॉप अप इन द कमेंट्स. राइट दैट शुड बी योर पार्ट. अब मैं एक चीज दिखा देती हूँ सबको. अभी आपके कुछ क्वेश्चंस हैं डॉक्यूमेंटेशन से, ये सॉल्व कर देना. अप्रोक्सीमेटली 18 क्वेश्चंस वर देयर. तो वो आपको घर पे सॉल्व करने हैं. कोई प्रॉब्लम होगी यू कैन जस्ट पुट इट अप इन द कमेंट्स. आंसर की मैं आपको तभी अवेलेबल कराऊंगी जब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे. राइट so that is on your hand and then I'll pop up the answers in the comments also. In the next class also we can discuss it out. Right, rest everything whatever query you have you can just put up in the comments. Any topic of your choice, anything, any problem related to any part, we'll be discussing it out. Right, so all the best guys and we'll be meeting again in the next classes. So hope you're enjoying the classes and be there in the classes every day so that even you get the motivation and I get the motivation to give the best to you. Right, so okay, take care.